Hello everyone, welcome back to our virtual class. Today we revise next topic of national income. Uh, Today we revise different concepts of national income. There are four concepts in your book, that is GDP, GNP, NNP. Okay, gross domestic product, net domestic product, gross national product, and net national product. First of all, I explain you what is gross and net. What is the difference between gross and net? Okay, gross and net. Gross means total, net means total. But what is the difference in these concepts of gross and net? Gross income is the total amount you earn, right? Gross income means total amount, which is the total amount you earn, and net income is your actual business profit after expenses and allowable deductions are taken out. Means gross is the total or whole amount of something. It is a total or whole amount of something. And net means what remains from the whole after certain deductions are made. Means gross मतलब क्या? Total, total amount, whole amount. एंड नेट मतलब क्या कि जो ग्रॉस अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट है, उसमें से कुछ जो अमाउंट है वो डिडक्ट करके जो बाकी रहता है, दैट इज नेट इनकम. ओके, then what is gross? What is the difference between domestic and national? What is the difference between domestic and national? Gross domestic product, gross domestic product and net domestic product. तो ग्रॉस मतलब क्या? टोटल. और नेट मतलब ये टोटल में से जो रिमेनिंग है, एक्सपेंसेस निकाल के, एक्सपेंसेस डिडक्ट करके जो अमाउंट बाकी होगी उसको कहते हैं नेट. अभी डोमेस्टिक, व्हाट इज डोमेस्टिक एंड नेशनल? National income, see, national income is the earned income by the normal residents of a country during a 1 year, that is a financial year. Means the value of goods and services produced by a country during a financial year. The value of goods and services produced by a country during a financial year. Financial year जो है 1 अप्रैल to 31 मार्च, ये एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, दैट इज नेशनल, नेशनल इनकम. एंड डोमेस्टिक इनकम मीन्स क्या कि इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम generated by all production units located within domestic territory of a country during an accounting year or during an financial year. मतलब जितने भी फैक्टर्स यूज किए, यहाँ पे क्या है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड है, राइट. यहाँ पे भी डोमेस्टिक पे भी फाइनल गुड्स ही इंक्लूड है, लेकिन जो फैक्टर इनकम है, जो फैक्टर्स यूज किए उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरेस्ट, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस. तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको, उनका, उनसे जो इनकम जनरेट होता है वो डोमेस्टिक में ऐड होता है, इंक्लूड है, राइट. तो ग्रॉस मतलब होल अमाउंट, होल इनकम. नेट मीन्स होल इनकम में से, होल अमाउंट में से जो डिडक्ट करके जो बाकी बचता है, दैट इज नेट, नेट इनकम. एंड डोमेस्टिक एंड नेशनल, डोमेस्टिक मतलब जो अपनी जो बाउंड्री है, नेशन बाउंड्री है, जो जोग्राफिकल एरिया है उसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे,
तो वो यहाँ पे अकाउंट होगी। ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है अपनी जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स is a gross of all final goods and services within the domestic territory. Domestic territory मतलब geographical area or nation's border of a country during a period of 1 year, that is 1st April to 31st March. Final goods means क्या कि consumer goods. It is a commodity that is used by the consumer to satisfy current wants or needs rather than to प्रोड्यूस अनदर गुड्स। जो भी फाइनल गुड्स है मतलब कंज्यूमर वो गुड यूज करने के लिए रेडी है और वो गुड जो है जो चीजें है तो वो कस्टमर यूज कर सकता है, तो दैट इज फाइनल गुड। फाइनल गुड, और ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसे उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं, जो हम डेली यूज करते हैं, दैट इज कंज्यूमर गुड्स। हम जो भी चीजें यूज करते हैं डेली, जो हमें चाहिए वो यूज करते हैं, तो दैट इज कंज्यूमर गुड्स। एंड ये जो फाइनल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स है, सर्विसेज है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, अपने जोग्राफिकल एरिया, नेशंस बाउंड्री में 1 ईयर में, फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये 1 ईयर में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है अपने कंट्री में, दैट इज जीडीपी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी? C plus I plus G, GDP is equal to C plus I plus G plus X minus M. C plus I plus G plus X minus M. What is C? What is C? C is a consumption. Consumption means buying and selling something, buying and using something, buying and using. हम जो प्रोडक्ट्स लेते हैं मार्केट से कंजम्पशन के लिए, जो भी गुड्स हम खरीदते परचेस करते हैं, तो दैट इज कंजम्पशन, कंजम्पशन गुड्स। ओके, सो इट इज द लार्जेस्ट जीडीपी कंपोनेंट इन द इकोनॉमी, कंसिस्टिंग ऑफ प्राइवेट एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, हम जो भी कंजम्पशन के लिए जो भी गुड्स यूज करते तो वो ड्यूरेबल भी है, नॉन ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल भी है। जैसे वेजिटेबल्स है, मिल्क, मिल्क लेते हैं, वेजिटेबल्स, या तो चेयर, फर्नीचर, टीवी, ऑल नॉन ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स जो हम परचेस करते हैं, दैट इज कंजम्पशन। कंजम्पशन के लिए जो भी गुड्स हम लेते हैं, दैट इज कंजम्पशन। सेकंड है इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? includes business investment in equipments। जैसे बिजनेस के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस में इन्वेस्ट होगा? इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। देन स्पेंडिंग बाय हाउसहोल्ड्स ऑन न्यू हाउसेस और रिन्यूअल्स ऑफ हाउसेस, लाइक दैट। मतलब इन्वेस्टमेंट में जो हाउस होल्ड्स भी इन्वेस्ट करते, फर्म्स भी इन्वेस्ट करते, तो ये दोनों भी इन्वेस्टमेंट में आता है। थर्ड जो है जी, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इट इज द टोटल और सम ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एज वी नो, ऑल आर नो that what are the government expenditures. Okay, expenditure, it is a total or sum of all government expenditure on final goods and services. It includes salaries of public servants, then purchase of weapons for military, etc. Okay, that are the government expenditures. Then next is X and M. X means export and M means import. तो एक्सपोर्ट क्या है? रिप्रेजेंट्स ग्रॉस एक्सपोर्ट। जो ग्रॉस एक्सपोर्ट्स है, ग्रॉस हमने अभी सीखा, ग्रॉस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट? यहाँ पे क्या है? ग्रॉस एक्सपोर्ट जो है वो जीडीपी कैप्चर्स एज द अमाउंट ऑफ कंट्रीज प्रोड्यूसेस, कंट्री प्रोड्यूसेस, कितने प्रोड्यूस, कंट्री कितना अमाउंट प्रोड्यूस करता है, तो वो पूरा यहाँ पे कैप्चर होता है। including goods and services produced for other nations consumption, therefore exports are added. And import, that is a, import means
Import represent the gross imports. Gross gross import. Import are subtracted. Export minus import. Okay. In short, GDP. In short, GDP provides an economic snapshots of a country. Economic snapshots of a country used to estimate the size of an economy and growth rate. Estimate the size of an economy and growth rate. GDP can be included in three ways: using expenditure, production और incomes. एक्सपेंड जितना खर्चा और कितना खर्चा होता है, कितना प्रोडक्शन होता है और उसमें से इनकम कितना होता है, ये तीनों चीजें, ये तीनों का कैलकुलेशन जीडीपी में होता है. कौन सा? एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन एंड इनकम. ये तीनों का कैलकुलेशन जीडीपी में है. ओके. नेक्स्ट इज एनडीपी. एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. It is the market value of all final goods and services produced within the territorial boundaries of a country during a period of 1 year. ये जो है, ये 4 जो कंसेप्ट है, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी, इसमें ये जो कैलकुलेशन है वो 1 ईयर का रहता है. जैसे वो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें से ही रहेगा. तो इट इज द नेट market value of all final goods and services produced within a territorial boundaries of a country during a period of 1 year. जो हमारी territorial boundaries है, national boundary है, उसके अंदर 1 year में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू एनडीपी में काउंट होती है, कैलकुलेशन होती है. ओके. What is the formula of GDP? NDP. GDP NDP is equal to GDP minus depreciation. As we learn what is depreciation. Here depreciation means it reduces the value of capital. Okay, it is reduce the value of capital. It is why it is of a nation. It is separated from GDP to get NDP. In short, it is an annual measure of the economic output of a nation that is adjusted to account for depreciation and is calculated by subtracting depreciation from GDP. GDP में क्या क्या आता है? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम, ये मिला के ये जो जीडीपी है उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस किया जाता है. डिप्रिसिएशन माइनस करके जो अमाउंट आएगी, जो अमाउंट है दैट इज कॉल्ड एनडीपी. दैट इज कॉल्ड एनडीपी. जैसे हमने देखा ग्रॉस मतलब क्या है? टोटल अमाउंट, होल अमाउंट. एंड एन नेट मतलब होल अमाउंट में से जो एक्सपेंसेस डिडक्ट किए तो वो डिडक्ट करके जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज नेट अमाउंट. सो यहाँ पे क्या है? एनडीपी. जीडीपी मतलब सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये जीडीपी है, ये सब काउंट होता है. और एनडीपी में जीडीपी जो है वो माइनस जीडीपी में से जो डिप्रिसिएशन माइनस करके जो अमाउंट आएगी दैट इज कॉल्ड एनडीपी. ओके. Next is GNP. GNP, that is gross national product, means the gross value of all final goods and services and produce annually in a country. Annually in a country, which is estimated according to the price prevailing in the market. What is the formula of GNP? GNP. This is GDP and NDP. GDP is C plus I plus G plus X minus M. NDP GDP minus depreciation. Okay, and GNP C plus I plus G, C plus I plus G plus X minus M और आगे प्लस
आर माइनस पी, आर माइनस पी। ये सेम फॉर्मूला है, जीडीपी का फॉर्मूला ये है, जीडीपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन किया तो एनडीपी आएगा, जीडीपी प्लस आर माइनस पी किया तो जीएनपी आएगा। तो ये आर माइनस पी क्या है, आर माइनस पी, आर मीन्स रिसिट फ्रॉम एब्रॉड एंड पी मीन्स पेमेंट मेड एब्रॉड। मतलब एब्रॉड से जो इनकम हमें मिलेगा वो, और जो हमें देना है वो, जो हमें देना है वो, मतलब जो मिल रहा है हमें एब्रॉड से कुछ इनकम हो रहा है तो उसमें से जो हमको देना है एब्रॉड को, तो वो माइनस करके जो अमाउंट आएगी दैट इज आर माइनस पी, रिसिप्ट माइनस पेमेंट मेड फ्रॉम एब्रॉड। तो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड that is GNP. GNP takes into account the manufacturing of tangible goods such as vehicles, agricultural products, machinery, etc., as well as the provision of services like healthcare, business consultancy, and education. All these services are included here. The next is NNP, that is NNP, Net National Product. Net National Product. NNP is the market value of all final goods and services produced by the residents of a country, by a residents of a country during a period of 1 year. What is the formula of NNP? See, what is the formula of GDP? C plus I plus G plus X minus N. What is the formula of NDP? NDP, GDP minus depreciation. Okay. What is the formula of GNP? GDP, that is GDP, GDP plus R minus P. अभी GNP का फॉर्मूला क्या है? GNP, GNP minus depreciation, minus depreciation. इजी है। ओके, जीएनपी का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस, ये तो हमें मालूम है जीडीपी है, जीडीपी प्लस आर माइनस पी, और यहाँ पे क्या आएगा? जीएनपी, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, मतलब सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी minus depreciation. That is the formula of NNP. NNP is calculated by taking GNP and then subtracting the value of how much physical capital is worn out or reduced in value because of aging or over the course of a year. So, okay, it means capital ages and losses value is called depreciation here. Okay, that is a GNP. Okay, these are the 4 concepts in your book: GDP, NDP, GNP, and NNP. Most important. The next part is methods of measurement of national income. अभी ये जो नेशनल इनकम कैसे मेजर किया जाता है, कौन कौन से मेथड से इनकम मेजर किया जाता है? दैट इज आउटपुट मेथड, आउटपुट मेथड. सेकंड इज इनकम मेथड, इनकम मेथड, एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड. ओके, तो फर्स्ट क्या? आउटपुट मेथड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोडक्ट मेथड. ओके, प्रोडक्ट मेथड. What is output method? National income is measured by the output method by calculating the total value of goods and services produced in a country during the year. Okay, so the money value of goods and services produced in an economy in an accounting is called gross national income. जैसे हमने देखा ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, ग्रॉस मतलब क्या, नेट मतलब क्या, और नेशनल और डोमेस्टिक, ऐसे डिफरेंस देखा. दैट इज
आउटपुट मेथड, ये कैसे मेजर किया जाएगा? आउटपुट मेथड की 1 ईयर में जितने भी प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, value of goods and services produced in a country during the year. So the output approach is also called the net product or value added. According to this method, the economy is divided into different sectors such as agriculture, mining, manufacturing, small enterprises, communication, and other services. Okay. In this method, according to this method, economy is divided into different sectors. In the final product, the values of intermediate goods are already included. जैसे हमने देखा कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड देखा था, तो फाइनल गुड मतलब जो फाइनल यूज करने के लिए रेडी है, तो दैट इज फाइनल गुड, और इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो फाइनल जो यूज करने के लिए अभी तक रेडी नहीं है, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स, और सिर्फ फाइनल गुड्स ही इसमें इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड के जो प्राइजेस है, इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यूज है, तो वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूड किए जाते हैं, ऑलरेडी इट इज इंक्लूडेड इन फाइनल गुड्स। तो इसलिए फाइनल गुड्स की ही अमाउंट या तो वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड है। ये जो मेथड है आउटपुट मेथड, तो ये सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर, जो प्रोडक्ट है उससे ही डिपेंड है, उसका मतलब प्रोडक्ट को सामने रख के ये इसका काउंटिंग होता है। मीन्स सेपरेट अकाउंटिंग ऑफ द वैल्यूज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अलॉन्ग विद द अकाउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स। इट मीन डबल काउंटिंग, जैसे कि डबल काउंटिंग अवॉइड करना है। डबल काउंटिंग वो जो होता है, जैसे रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स, इनका रिपीटेड काउंटिंग फाइनल गुड में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए ये मेथड यूज किए जाते हैं। तो ये कैसे यूज किया? ये दो अप्रोच में यूज होता है। आउटपुट मेथड दो अप्रोचेस में यूज होता है, दैट इज फाइनल गुड अप्रोच एंड फाइनल गुड्स अप्रोच एंड वैल्यू एडेड अप्रोच। इसे दो अप्रोचेस से आउटपुट मेथड मेजर किया जाता है, आउटपुट मेथड से मेजर किया जाता है। ओके, तो फाइनल गुड अप्रोच क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, only final goods and services are to be considered in the estimation of GDP. GDP का जो एस्टिमेशन है उसमें सिर्फ फाइनल गुड्स का ही फाइनल गुड्स ही कंसिडर किए जाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड इन दिस मेथड। इंटरमीडिएट गुड्स को कंसिडर नहीं किया जाता। वी नो दैट फाइनल गुड्स are those goods which have crossed the boundary line of a production and which are ready for use by their final users who may be consumers or producers। मतलब final goods जो कौन से हैं? जो कंज्यूमर को यूज करने के लिए रेडी है वो गुड, या तो प्रोड्यूसर्स को भी परचेस करने के लिए वो गुड रेडी है, तो दैट इज फाइनल गुड। व्हेन कंज्यूमर्स, यहाँ पे दो कंसेप्ट देखे हमने, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। ओके, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। व्हेन कंज्यूमर्स बाय फाइनल गुड्स देयर इज अ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड व्हेन प्रोड्यूसर्स बाय द फाइनल गुड्स देयर इज अ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, मतलब कैसे कि कंज्यूमर जब फाइनल गुड्स लेते तो वो कंजम्पशन करने के लिए लेते, हमें कुछ कंजम्पशन करने के लिए हम जब गुड्स परचेस करते हैं तो वो परचेस करने के लिए हम एक्सपेंडिचर भी करते हैं, मतलब वो खरीदते हैं तो हम पैसा यूज करते हैं, पैसे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन के लिए हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जब बाय करता है कोई भी फाइनल गुड्स या सर्विसेज, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अभी प्रोड्यूसर क्या, उसको प्रोड्यूसर जो है
उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। एक ही चीज, सपोज पेन है, तो एक ही पेन वो एक ही बॉक्स पेन का दुकान में नहीं रख सकता, उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर कस्टमर ज्यादा आए तो उसको वो सप्लाई करने के लिए दुकान में या तो शॉप में उसके कुछ तो मटेरियल चाहिए, तो इसलिए वो क्या करता है, ज्यादा मटेरियल परचेस करता है, तो वो इन्वेस्ट करता है। दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जब हम कंज्यूम करने के लिए, गुड्स कंज्यूम करने के लिए एक खरीद पैसे खर्च करते, तो दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा यूज करते हैं, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, thus only those goods are to be considered which are either causing final consumption expenditure or investment expenditure during an accounting year, during an financial year. Second point is value added approach. It refers to the difference between value of output and the value of intermediate consumption of each producing unit in the country. It is the difference between of value of output and the value of intermediate consumption of each producing unit in the country. Sum total of value added by all the producing units within the domestic territory of the country is equal to domestic product. Okay. I show you one chart. See, producing stage. First point is producing stage. Value of output, value of input. Wheat from farmers. Farmer के पास जो व्हीट है वो 7 रुपीज में है, सपोज 7 रुपीज उसकी प्राइस है, तो वो 7 रुपीज का व्हीट फ्लोर मिल को सेल करेगा 10 रुपीज में। 7 रुपीज का जो व्हीट है वो फार्मर फ्लोर मिल को 10 रुपीज में सेल करेगा। फ्लोर मिल क्या करेगा, उसके ऊपर प्रोसेस करेगा और वो 10 रुपीज को ब्रेड बेकर, जो बेकर है उसको सेल करेगा और 13 रुपीज को। और ब्रेड बेकर जो है वो रिटेलर को, मतलब मर्चेंट को सेल करेगा 14 रुपीज में। मतलब वैल्यू ऑफ इनपुट क्या है, फार्मर की वैल्यू ऑफ इनपुट क्या है, 0 है, वो 7 रुपीज का ही है। लेकिन जो फार्मर जब फ्लोर मिल को सेल करता है तो फ्लोर के ऊपर, उसके ऊपर व्हीट के ऊपर प्रोसेस करके फ्लोर मिल क्या करेगा, वो 7 रुपीज का जो व्हीट लिया था उसके ऊपर प्रोसेस करके 10 रुपीज को बेकर को सेल करेगा, राइट। 10 रुपीज को बेकर को सेल करेगा, बेकर उसके ऊपर प्रोसेस करेगा और फिर वो 10 रुपीज का फ्लोर मिल जो फ्लोर लिया था तो वो ब्रेड बनाएगा, उसके ऊपर प्रोसेस करके ब्रेड बना के फिर 13 रुपीज को रिटेलर को सेल करेगा। रिटेलर उसके ऊपर अपना जो परचेस कर सेल करने के लिए जो खर्चा आएगा वो सपोज 1 रुपीज उसके ऊपर एक्स्ट्रा लगाएगा, तो फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया, 14 रुपीज। व्हीट कितने रुपीज का था, 7 रुपीज का था और फाइनल वैल्यू उसकी क्या हो गई, रिटेलर के यहाँ पे आके 14 रुपीज हो गई। तो वैल्यू एडेड, वैल्यू कितने ऐड हो गए उसमें, व्हीट जो फार्मर से व्हीट लिया था वो कितने रुपीज का था, 7 रुपीज का था। फ्लोर मिल में जाके उसमें कितना वैल्यू ऐड हुआ, 3 रुपीज ऐड हो गया, क्योंकि उसके ऊपर फ्लोर मिल ने प्रोसेस किया तो वो उसने 3 रुपीज ऐड किया। ओके, उसके बाद बेकर के पास आया तो वो कितने रुपीज का हो गया, 13 रुपीज का। मतलब 3 रुपीज उसमें ऐड किया क्योंकि उसने भी उसमें प्रोसेस किया, बेकर ने प्रोसेस करके ब्रेड बनाया उसका, तो वो उसने भी 3 रुपीज ऐड किया। उसके बाद रिटेलर के पास आ गया तो मर्चेंट ने उसमें भी 1 रुपीज ऐड किया, तो कितना हो गया, 40। तो वैल्यू एडेड मतलब कितनी वैल्यू हो गई उसकी, 7 रुपीज का व्हीट था, वैल्यू ऐड होकर उसकी फाइनल वैल्यू क्या हो गई, 14 रुपीज। दैट इज
value added approach. Okay. Okay. The next method is income method. What is income method? Under this method, national income is measured as a flow of factor income. Okay, flow of factor income. Then, what is factor income? Factor income is received from the factors of production. जो factors of production है, उससे जो income आता है, उससे जो income आता है, that is factor income. There are generally four factors of production. As we know that labor, capital, land, entrepreneurship, that are the factors of production. तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उससे जो हमें इनकम आता है, दैट इज फैक्टर इनकम. तो इनकम मेथड में क्या यूज होता है? नेशनल इनकम में इनकम मेथड से कैसे मेजर किया जाता है? जो फ्लो है, फैक्टर इनकम का जो फ्लो है, वो इनकम मेथड में काउंट किया जाता है, इनकम मेथड से मेजर किया जाता है. देन कैपिटल है, कैपिटल क्या, जैसे लैंड, लेबर, वेजेस, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो हमें मालूम है वो जो फैक्टर्स है उनको रेम्यूनरेशन क्या मिलता है. जैसे लैंड को रेंट, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट, और लेबर जो है उनको वेजेस, ऐसे रेम्यूनरेशन मिलता है. तो दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर पेमेंट्स. Besides, there are some self-employed persons. अभी यहाँ पे self employed person भी है, who employs their own labor and capital, who employs their own labor and capital. For example, जैसे doctors, advocates, CAs, ये जो है, their income is called mixed income. कि जो लैंड, लेबर, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो खुद ही यूज कर, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो उनका जो इनकम है दैट इज कॉल्ड मिक्स इनकम, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम. Okay. In other word, we can say the incomes of the self-employed persons using their own labor, land, capital, entrepreneurship to produce goods and services. The sum total of all these factors incomes is called NDP at factor cost. NDP, net domestic product. Okay. The sum total of all these factor income is called NDP at factor cost. What is factor cost? Total cost of all factors of production consume or use in producing a good or services. That is a factor cost. Okay, today we are revise output method and income method. I hope you all are understand these.